ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Welcome to eSamveda class. Today we are going to learn from class 4th subject, second language English. Under that we are going to learn the unit number 8 art. In unit number 8 art, I have divided two parts. One is poem and another one is lesson. In poem we have two parts and in prose we have three parts. Today we are going to learn the first part of the poem, that is If I Could Fly, part 1 of 2. So children, before going to start the class, I would like to show you a video clip. Please have a look at the video clip and enjoy the video. Rainbow in the sky, sun shines and rain, that is why. Red and orange, yellow, green and blue, indigo, violet, that is really true. Sometimes half and sometimes full, but rainbow is very beautiful. Rainbow in the sky, sun shines and rain, that is why. Red and orange, yellow, green and blue, indigo, violet, that is really true. Sometimes half and sometimes full, but rainbow is very beautiful. Children, how was the video? It was nice. So now I am going to read the video. Did you sing with me? Yes, you can sing with me. The video was very nice, no? Yes, it was very nice. Let's sing the rhyme. Rainbow, rainbow, rainbow in the sky, sunshine and rain, that is why. Red and orange, yellow, green and blue, indigo, violet, that is really true. Sometimes half and sometimes full, but rainbow is very beautiful. Okay children, we will sing once again. Yes. Rainbow, rainbow, rainbow in the sky, sunshine and rain, that is why. Red and orange, yellow, green and blue, indigo, violet, that is really true. Sometimes half and sometimes full, but rainbow is very beautiful. Okay children. Children, have a look at the video and enjoy the video. So children, tell me what are the things we see in this video. बच्चों, हमने इस वीडियो में क्या देखा? Yes, tell me. Yes, correct. Okay, you tell me. Yes, correct. बच्चों, हमने इसमें आसमान को देखा, सूरज को देखा, बारिश को देखा, रेनबो को देखा और बहुत सारे रंगों को भी देखा. Sky, sun, rain, rainbow and colors. Children, we have seen lot of things in the video. So children, see the next image. इस इमेज में क्या है बच्चों? इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है? यस, आसमान नजर आ रहा है जो हमने वीडियो में देखा था. सी द नेक्स्ट. बच्चों, हम इस सबक को शुरू करने से पहले आर्ट के बारे में हम इसे जानेंगे. बच्चों, आर्ट की मीनिंग है, आर्ट इज जनरली अंडरस्टूड एज एन एक्टिविटी और प्रोडक्ट डन बाय पीपल that expresses an idea and emotion और more generally ये world view. बच्चों, आर्ट क्या है? आर्ट एक फन है, आर्ट एक हुनर है, आर्ट एक कला है.
आर्ट से क्या है, इंसान अपनी सलाहियतों को जाहिर करता है। आर्ट के जरिए हम दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आर्ट उर्दू में फन कहते हैं। आर्ट की और एक माना है, आर्ट इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी दैट एक्सप्रेसेस इमेजिनेटिव और टेक्निकल स्किल। इसमें क्या है, इंसान अपनी सलाहियतों को, अपने ख्यालातों को क्या है, जाहिर करता है। पर पेपर के ऊपर ड्राइंग के ज़रिए से, पेंटिंग के ज़रिए से, म्यूज़िक के ज़रिए से, क्या है, ड्रामे के ज़रिए से, पिक्चर के ज़रिए से, थिएटर के ज़रिए से इसे क्या है, जाहिर करता है। हम इसको समझने का मकसद क्यों है बोले तो बच्चों, हमारा सबक का नाम ही क्या है, आर्ट है। इसीलिए हम आर्ट के माने जानना बहुत ज़रूरी है। इट इंक्लूड्स, आर्ट्स में क्या क्या आता है बच्चों, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, फोटोग्राफी, परफॉर्मेंस आर्ट, डांस, म्यूजिक, पोएट्री, प्रोज एंड थिएटर। बच्चों आर्ट में बहुत किस्म के चीज़ें आती हैं। आर्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज। बच्चों आर्ट को 7 कैटेगरीज में, 7 किस्मों में बांटा गया है। पहला है पेंटिंग। देखो बच्चों, इस तस्वीर में बच्ची अपने हाथ पेंट से रंगी हुई है। सी द नेक्स्ट इमेज, इट इज अ स्कल्पचर, ये मूर्ति है। इसमें आपको कौन नजर आ रहे हैं बच्चों, यस वेरी गुड, इसमें गांधी जी नजर आ रहे हैं। इसे गांधी जी की मूर्ति है, इसे हम क्या कहते हैं, स्कल्पचर कहते हैं। और ये देखियो बच्चों, तीसरा इमेज, इसमें क्या है, बहुत सारी किताबें, बुक्स हैं। ये क्या है, लिटरेचर। तो आर्ट्स के ये पहला पेंटिंग, दूसरा स्कल्पचर और तीसरा क्या है, लिटरेचर, इसकी किस्में हैं। देखो बच्चों, ये क्या है, 4th इमेज है, 4th तस्वीर है, चौथी तस्वीर है। इसमें क्या बताया गया है, एक बिल्डिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर। ये आर्ट का 4वां हिस्सा है, 4th टाइप ऑफ आर्ट है। सी द नेक्स्ट इमेज, व्हाट इज दिस इन द इमेज, ए पर्सन इज होल्डिंग ए गिटार। एक आदमी क्या है, गिटार पकड़े हुए है। इससे क्या आता है बच्चों, यस म्यूजिक, म्यूजिक निकलती है। तो क्या है, ये म्यूजिक है। सी द नेक्स्ट एंड 6th इमेज, दिस इज, व्हाट इज द इमेज, यस व्हाट ही इज डूइंग, यस ही इज डांसिंग। बच्चों ये क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। तो ये क्या है, आर्ट का 6ठा टाइप है। एंड सी द लास्ट इमेज, दिस इज द 7th टाइप ऑफ आर्ट। व्हाट इज दिस इन द इमेज, यस चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग। बच्चे क्या है, इसमें हिस्सा लेकर कुछ काम कर रहे हैं। पहली तस्वीर में बच्चे क्या कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में बच्चे डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, सी व्हाट इज देयर इन द इमेज। बोलो बच्चों, इस इमेज में क्या नजर आ रहा है, यस इस इमेज में आपको पर नजर आ रहे हैं, परिंदे के पर हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, विंग्स। क्या कहते हैं बच्चों, विंग्स। सी द नेक्स्ट इमेज बच्चों, व्हाट इज दिस इमेज कंटेंट, यस बच्चों इस इमेज में क्या नजर आ रहा है आपको, इस इमेज में आपको हाँ परिंदा नजर आ रहा है जो आसमान में उड़ रहा है। दिस इज द इमेज ऑफ ए बर्ड। सो चिल्ड्रन, विंग्स, बर्ड, ये सब हमें क्यों का जरूरी है, यस हमें उड़ने के लिए। सो हमारा नज़म है, इफ आई कुड फ्लाई। सी दिस इन इमेज, ए गर्ल इज flying, she is having a wings. So children, before going to start the poem, I would like to show you the video clip of the poem, If I Could Fly. Have a look at this video clip and enjoy the video. If I could fly. Santhini Govindan. If I had a pair of wings with which to fly, I'd soar straight away up into the sky. I'd carry a brush and paints in colors bright, so I could paint even fluffy cloud in sight. I'd paint them purple and yellow and green. They'd be the prettiest you've ever seen. I'd paint rainbows in the sky every single day, so I can watch them
when I work and play. And when the moon and stars come out at night, perhaps I'll paint them too for my delight. Children, did you enjoy the video? How was the video? Yes, it was very nice. Okay, children, now I am going to read the poem. So, before going to I am read the poem, you listen carefully. Listen carefully. Don't open the book. So, listen. If I had a pair of wings with which to fly, I would soar straight away up into the sky. I would carry a brush and paints in colors bright, so I could paint every fluffy cloud in sight. I would paint them purple, yellow and green. They would be the prettiest you have ever seen. Children, now I am going to read it once again. Did you repeat after me, children? Okay, repeat after me. बच्चों मेरे साथ तुम भी इस नज़म को मेरे साथ दोहराओ, मेरे साथ गाओ. Okay, children. If I could fly, yes, sing with me. If I had a pair of wings with which to fly, I would soar straight away up into the sky. I would carry a brush and paints in colors bright, so I could paint every fluffy cloud in sight. I would paint them purple, yellow and green. They would be the prettiest you have ever seen. Okay, children, before going to summarize the poem, बच्चों नज़म को समझने से पहले हम क्या है नज़म में शामिल मुश्किल अल्फाज या फिर नए अल्फाजों को सीखेंगे. Children, before going to start the poem or before going to summarize the poem, I would like to introduce to you some new words or difficult words. See the first word. What is there? Pair. What is there in the image? Shoes. बच्चों इस इमेज में क्या नजर आ रहा है? Shoes हैं, जूते हैं. ये कितने हैं? दो हैं. कितने हैं? दो हैं. Very good. What is the meaning of pair? A set of two things used together. बच्चों एक दो चीज क्या है? एक सेट होता है. इसे हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं. जैसे बच्चों हमको ताली मारनी है तो हम दो हाथों का इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही अगर हम जूते पहनना है तो भी क्या है? हम दो ही जूते पहनेंगे. तो इसे हम क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं. और हमारी नज़म में क्या है? विंग्स है. विंग्स भी क्या है? परिंदों को उड़ने के लिए एक पर रहा तो परिंदा नहीं उड़ सकता. दो परिंदों के साथ क्या है? परिंदा उड़ सकता है. इसे कहते हैं पेयर. सी द नेक्स्ट इमेज. विंग्स. जो मैं पहले बोल रहा था ना बच्चों, वही है. ये भी क्या है? विंग्स है. दो पर हैं. कितने पर हैं? दो. मीनिंग ऑफ विंग्स इज इन ए बर्ड ए मॉडिफाइड फोर लिम्स टू फ्लाई. ये modified four limbs to fly. It is the meaning of wings. Children, see the next image. What is there in the image? बच्चों इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ, परिंदा आसमान में उड़ रहा है. See the word here, soar. Soar. The meaning of soar is fly or rise high in the air. बच्चों इस इमेज में परिंदा क्या है? आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहा है. इसका सोर का माना है आसमान में बहुत ऊंचाई पर क्या है? उड़ना. See the next image, children. What is there in the image? Yes, road. आपको इस इमेज में क्या नजर आ रहा है? रोड. रोड कैसा है? Straight. कैसा है? Straight. The word is straight and the meaning of the word is moving uniformly in one direction only. एक ही सिमत में हमें जाने को क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं. इस रोड में भी रास्ता सीधा नजर आ रहा है. सीधा नेक्स्ट इमेज एंड द नेक्स्ट वर्ड written in the image. Yes,
What is there in the image? Children are holding or carrying paint brushes. The meaning of carry is support and move something from one place to another. बच्चों carry के माने है एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना, यानी कि पेंट क्या है, पेंट ब्रश हाथ में पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाए तो ही हमें क्या होता है, पेंट क्या होता है, कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, तस्वीर मुकम्मल होती है। तो इसे क्या है, कैरी करना। कैरी के बहुत सारे माने हैं बच्चों। हम क्या है, अपना बैग भी क्या है, अपने कंधों पर कैरी करके स्कूल को आते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, कैरी करना कहते हैं। सी द नेक्स्ट इमेज, व्हाट इज देयर इन द इमेज एंड व्हाट इज रिटन इन द इमेज। बच्चों इस इमेज में आपको कौन सी तस्वीर नजर आ रही है और वहां पर वर्ड और उसके माने भी लिखे हुए हैं। सी द इमेज, इस इमेज में आपको हाथों में रोशनी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, रोशनी। सो द मीनिंग ऑफ ब्राइट इज शाइनिंग, रिफ्लेक्टिंग मच लाइट, बहुत ज्यादा रोशनी है इधर, इसे हम क्या कहते हैं, शाइनिंग कहते हैं। इसका माना क्या है, शाइनिंग। सी द नेक्स्ट इमेज, व्हाट इज देयर इन द इमेज। बच्चों इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है। इस इमेज में आपको कपास या रुई नजर आ रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है बच्चों। इस इमेज में क्या है, एक कुत्ता है जिसके जिस्म पर बहुत सारे बाल हैं, नरम और मुलायम बाल हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लफी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड फ्लफी, और इसके माने हैं सॉफ्ट एंड लाइट, सॉफ्ट एंड लाइट। सो ये कुत्ता क्या है, बालों से ढका हुआ है। सी द नेक्स्ट image and the word here. What is there in the image? A boy is looking somewhere. बच्चा क्या है, इस तस्वीर में देख रहा है। Sight means power of seeing, यानी कि इसके माने हैं देखने के। Sight माने क्या है, देखना। See the next image. Yes. What is there in the image? इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है, एक आसमान है। आसमान में कई तरह के आपको बादल नजर आ रहे हैं। ये क्या है, बादलों में अलग अलग किस्म की तस्वीर है। ये आपको बहुत अच्छा दिख रहा है ना बच्चों। यस, इट इज वेरी अट्रैक्टिव। द वर्ड इज प्रेटिएस्ट एंड द मीनिंग इज अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, लवली। ये तस्वीर देखकर हमको क्या है, हमें भी आसमान में ऐसा देखने की ख्वाहिश होती है। ऐसे बादल हम भी देखना चाहेंगे ना बच्चों। यस, सी द नेक्स्ट इमेज। What is there in the image? Word has written. There is no picture here. The meaning has been written. इस तस्वीर में आपको बच्चों कोई तस्वीर नहीं आ रही है, बल्कि इस तस्वीर में आपको वर्ड और उसका माना लिखा हुआ नजर आ रहा है। हमारा वर्ड है एवर और उसके माने हैं ऑलवेज, हमेशा। उर्दू में इसे क्या कहते हैं बच्चों, हमेशा। सीधा। सो बच्चों नेक्स्ट अब क्या है, हम पोएम की समरी देखेंगे। पोएम की समरी क्या है, मैं आपको समझाऊंगा और आप क्या है, आराम से समरी सुनिए। द गर्ल इन दिस पोएम विश टू फ्लाई इन द स्काई इफ शी हैड ए पेयर ऑफ विंग्स। बच्चों इस नज़म में लड़की क्या ख्वाहिश कर रही है कि वो अगर उसके पास पर होते तो वो आसमान में उड़कर जाती, आसमान में उड़कर जाना चाहती है बच्चों। सो दैट शी कैन फ्लाई हाई और सोर स्ट्रेट अवे इनटू द स्काई। क्या है, वो आसमान में ऊंचाई पर उड़ना चाहती है। हम क्या है, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ से हम ना क्या है, जमीन नीचे दिखती है, लेकिन उतना नीचे नहीं दिखती है जितना परिंदों को दिखती है। तो क्या है, बच्ची इस नज़म में कह रही है कि वो आसमान में ऊंचाई पर उड़ना चाहती है जहां पर परिंदे उड़ते हैं, और वो क्या है, सीधा ऊपर की तरफ उड़कर जाकर also she would like to carry a paintbrush with her to paint the fluffy soft and light clouds which comes under her sight। वो आसमान में सिर्फ उड़ना नहीं चाह रही है, बल्कि वो अपने साथ पेंट ब्रश, पेंट्स वगैरह सब लेकर जाना चाह रही है। और वो क्या है, जो उसके जो नज़र में आ रहे हैं, उसके जो साइट में आ रहे हैं, उन
क्लाउड्स को, उन बादलों को वो रंग करना चाह रही है। जो जो बादल मिल रहा है उसे वो रंग करते हुए जाना चाह रही है। यानी कि नरम मुलायम एक एक बादल को क्या है, अलग अलग रंग से वो रंग करना चाह रही है। She like to paint every single cloud with different colors. यानी कि बच्चों, जैसा मैं कह रहा हूं कि वो हर एक बादल को, आसमान में शामिल बहुत सारे बादल हैं आसमान में, तो आसमान में जो जो बादल हैं उन बादलों को वो कलर करना चाह रही है, रंग करना चाह रही है। जैसे कि वो लाइक ग्रीन, यानी कि सब्ज रंग, हरा रंग करना चाह रही है। साथ में पर्पल, पर्पल रंग भी करना चाह रही है। एंड येलो, यानी कि वो ग्रीन, पर्पल और येलो रंग करना चाह रही है, और बहुत सारे रंग भरना चाह रही है। बिकॉज दे क्लाउड्स शुड लुक लाइक ए प्रेटीएस्ट। वो क्यों ऐसा करना चाह रही है बच्चों? क्योंकि आसमान में जब नीचे से सब लोग देखें तो उनको वो बहुत ही प्रेटीएस्ट नजर आए, वो आन दे बोल के वो क्या है, ऐसा कर रही है। सी, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव टू द होल वर्ल्ड that nobody has never seen it before in their life. ऐसा आसमान को सजाना चाह रही है कि हम लोग या आप लोग या कोई भी लोग कभी भी आसमान में ऐसा हम नज़ारा नहीं देखे हैं, ऐसा नज़ारा वो बनाना चाह रही है। तो बच्चों, हमने इस नज़म की समरी सीखी। सीधा नेक्स्ट द मीनिंग ऑफ रैमिंग वर्ड्स। बच्चों, आप रैमिंग वर्ड्स जानते हैं? रैमिंग वर्ड्स क्या हैं बच्चों? रैमिंग वर्ड्स क्या है? सी हियर, आपको मालूम है रैमिंग वर्ड्स? यस, रैमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड। बच्चों, रैमिंग वर्ड्स ऐसे दो या दो से ज्यादा लफ्ज हैं जिसके साउंड, एंडिंग साउंड जो है सेम रहता है। माने सेम ना हो बल्कि साउंड क्या है, बिल्कुल सेम रहता है। इफ दे साउंड द सेम और सिमिलर दे राइम। सिर्फ साउंड राइम हो गया, यानी कि सेम साउंड क्या है, सेम हो गया या सिमिलर हो गया, तो वो क्या है, राइम का वर्ड बनता है। जैसे कि बन है, फन है, ये एक राइमिंग वर्ड है। बन, फन, गन, सन, रन, ऐसे राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, हाउस, माउस, ये भी क्या है, सेम साउंड कर रहे हैं। सी, ओपन योर बुक, टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 114। बच्चों, अपनी दरसी किताब ओपन कीजिए, इसमें सफ़ा नंबर 114 खोलिए एंड सी वन एक्टिविटी इज देयर। Match the bats with the balls. Match the bats with the balls to get the pair of rhyming words and write the rhyming words in the space provided. See here, बच्चों, इसमें बैट और बाल दिया गया है, थोड़े rhyming words भी दिए गए हैं और यहाँ पर जगह भी दी गई है। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। आप क्या है, रैमिंग वर्ड चुनिए और बैट और बॉल को जोड़िए। So children, have you completed the work? Yes. See the first word, fly. The rhyming word of the fly is sky. Very good. Children, have you written it? Yes. So see the next word, moon. The rhyming word for the moon is June. Yes, you written it? Right. Very good. You have written all. See the next word, bright. What is the third word? Bright. And what is the rhyming word for the bright is sight. Okay children, see the next and the fourth word. What is the word here? Green. So what is the rhyming word for the word green? Yes, seen. Very good. See next and the last word children, day. And what is the rhyming word for the word day children? Play. Very good. Please note down in your notebook.
Okay, children, have you finished the work? Okay. So before concluding my class, I would like to give you the homework. So children, please open your notebook and write these two questions. First question is, what do you mean by art? Write its types. बच्चों पहला सवाल है, आर्ट क्या है, आर्ट के माने क्या हैं और उसकी किस्में कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, इनको आपको लिखना है. एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 116. बच्चों एक एक्टिविटी है पेज नंबर 116 में, ऑफ राइटिंग द वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर साउंड्स. यानी कि हम जैसा राइमिंग वर्ड्स करें वैसा ही वो एक्टिविटी भी है जिसे आपको मुकम्मल करके लाना है. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. सो चिल्ड्रन, माई सेल्फ शुजातुल्लाह खान, वर्किंग एट गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मटमारी फ्रॉम रायचूर डिस्ट्रिक्ट. We will meet you in the next class. Okay children, bye.